What's up, Turbo Revers? Welcome back to another video. Welcome back to the channel of car enthusiasts, guys. Today we are standing at Seni Toyota located in Salt Lake Sector 5. And if you're looking to buy a premium luxury sedan, look no further, guys. We have the Camry 2025 in front of us, and we'll be doing a full walk around of this amazing premium car for you guys. So if you're planning a luxury sedan, you know where to be, guys. Reach out to Seni Toyota and you'll be well taken care of. So basically, before we get started, I'd like to say something about the Toyota Camry. Now this particular badge means something. What does it mean? It means reliability, guys. And at this price point, if you're looking for a luxury premium sedan with reliability, look no further, guys. This sedan promises luxury with reliability. So Camry should be on the top of your list, and at the moment it has no competition. We had the Skoda Superb, we had the Honda Accord. There is no competition right now, and this is definitely going to rule the market given what the Toyota badge stands for. So without any delay, let's get started with the walk around of the Toyota Camry 2025. So guys, the Camry is in front of us. One more thing I'd like to mention, guys, we have Pallab Da here, who will be joining us within the Camry video, as he will be explaining the features of what is there in the all new Camry. Once we get inside, guys, we will do the exterior review on our own, and Pallab Da will join us once we get inside the car, and he will explain you each and everything in detail. In the meanwhile, let us take his introduction and then we'll get started with this video. Hi everyone, I am Pallab Mitra. I am the Assistant Sales Manager in Rajaraj showroom. We will explore the Camry today, and we will tell everyone how the Camry is different from all the G3s in this class. Thank you so much, Pallab Da. What do we have in the front? Let us just do a deep dive. Now, under the hood, we have the 2.5 liter 4-cylinder naturally aspirated engine, and this car also comes with a 251.6 volt lithium-ion battery pack. Together, they churn 230 horsepower with 221 Newton meters of torque. That's 28 horsepower more than the outgoing model, guys. Here we get insulation, we get hydraulic struts. Of course, this is definitely a need when you're buying such an expensive vehicle. And this car costs an ex-showroom of 48 lakhs, guys. I know there are a lot of German brands also that you can get at that price, but Toyota is known for its reliability, guys, and Camry is known for its reliability and longevity as well. So if you are in the market for a reliable luxury sedan, as I've already mentioned earlier, Toyota, Seni Toyota especially, is the place to be, guys. What do you get in the front? You get 1, 2, 3, 4 parking sensors with a parking camera, and this car comes with TSS, guys, Toyota Safety Sense, which Mr. Pallab Mitra will explain us in detail once we are inside the car. What is that safety feature? We will understand from him. So in the front you can see LED shaped indicators, LED projector lamps, both high beam and low beam. You get functional air curtains, and here you can see this is finished in a glossy gray, guys. Here your fog lamps below. This is the all new design from the front. Let me just close the hood. This is the hammerhead design by Toyota, guys. As you can see, it has a sloping hood below, and it kind of looks like a hammer from the front. You can see cuts and creases on the bonnet, and it's going all the way here. Toyota badging is on the hood as well, and it's different from a typical Toyota car for sure. It gives you a Prius vibe. It does look like the Toyota Prius from the front a little bit, and everything is getting sleeker from the front nowadays, and Toyota is also joining that trend. Get some glossy black element here, and this is what it is from the front, guys. Rain sensing wipers on top, aerotone wipers have been provided, premium wipers for a premium vehicle for sure. You get an electric sunroof with this, which is nice. HEV badging here on the fender. 18-inch rims, guys, with disc brakes in the front and the rear. The tire profile is 235/45 R18. And coming here to the ORVMs, you can see your turn indicator design is very sleek. You get your blind spot monitoring camera here below, and this is how the ORVM looks overall. At the shoulder line, you can see a chrome strip has been provided, and it's surrounding the pillars all over. Blacked out B pillar, it's a glossy black B pillar.
You get request sensor with this as well as a keyhole slot. So some manual function is also nice, because everything electronic is not a good thing, guys. But this thing here, I mean, it does make sense to me. If the request sensor, you know, can malfunction, but the keyhole slot will never malfunction. So that's a good thing, guys, in my opinion. So request sensor is only provided on the driver's side. No request sensor for the co-driver or the rear passengers. Same setting of the wheels. The wheels look really nice, guys. As you can see, Toyota badging in the middle, dual tone finish, and yes, disc brakes for the rear. So braking power is going to be on another level. Here you get LED lamps. So these LED lamps look really good, very sleek, and check out that indicator. HEV badging, Camry badging, Toyota badging, and this is the best I can do from the rear right now, guys. In terms of parking sensors, you get 1, 2, 3, 4 parking sensors and a rear parking camera. So this car is equipped with 360-degree parking camera. So parking and everything is going to be really easy. Here you get a defogger, you get your stop lamp, and that's about it from the rear. You get a 512-liter boot capacity with this. Below here, let's see what do we have. And you do get a spare wheel with this. That's your toolkit, which is nicely and neatly packed. And that's about it. You do get boot access from the second row as well. You guys can see there. And you do get a boot lamp, which is finished in halogen. Let us close it. This is the story of the boot and the rear profile overall, guys. Have a look from here. This is the best I can do because I don't have a lot of space right now. And thank you for understanding. Fuel lid here on the left. Same story on the left side of the car. And you get your HEV badging on the fender here as well. So this is what it is from the outside, guys. Very simplistic yet very premium the design is. Now what we're going to do, we're going to get inside the car. Mr. Paul Abda will be joining us and we'll explain you each and every feature that this particular premium sedan offers. Let's get inside straight away. So guys, now we are about to get inside this amazing, beautiful sedan. You get all 4 auto windows, you get your lock and unlock buttons here, ORVM functions and your memory function for the seats, soft touch here. You get your door handle storage and a nice door storage has been provided. Speaker is here. This car comes the 9 JBL speaker system. Now we are inside and it closes with a nice thud. Ab Pallabda, aapki bari hai. Thank you so much for joining us in this video. And we are very happy and excited to explore this car with you, Pallab da. तो प्लीज पल्लव दा, अब आप बताइए, पहले हम इंफोटेनमेंट से स्टार्ट करते हैं. इसका साइज, इसमें क्या फीचर्स है, प्लीज हमको, हमारे ऑडियंस को आप थोड़ा समझाइए. ये आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, हाँ जी, ये आपका 12.3 इंचेस का आता है. ओके, राइट. इसमें आपका नेविगेशन वगैरह सब कुछ तो आता ही है. उसके साथ एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले से आपका नेविगेशन और आपका जो फोन है टोटली क्लोन हो जाता है इसके सिस्टम के साथ. और वो वायरलेस है. हाँ, आपका एंड्रॉइड ऑटो इज वायर्ड, एप्पल कारप्ले इज वायरलेस. ओके, ओके. उसके साथ आपका यहाँ पे जो व्हीकल का जो डिटेल्स है, हाँ जी, वो भी आपका कुछ मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे भी आ जाता है. वेरी जैसे कि आपका देखिए यहाँ पे क्लाइमेट, ट्रिप इन्फॉर्मेशन, एनर्जी फ्लो जो है, दैट इज द हाइब्रिड सिस्टम का एनर्जी फ्लो जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगा. ओके, राइट. ये देखिए, ये आपका जो हाइब्रिड बैटरी है. नाउ द कार इज इन आइडल पोजीशन, सो द इंजन इज स्टॉप्ड फ्रॉम द हाइब्रिड बैटरी. ऑल द थिंग्स आर वर्किंग. लाइक आपका जो एसी वगैरह है, ये देखिए सर, आपका जो एसीज है, ये है आपका मतलब वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह सब कुछ आपका वर्क करेगा हाइब्रिड सिस्टम से. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ. तो जब गाड़ी बंद रहती है तो हाइब्रिड बैटरी ही ऑन यूज रहता है. हाँ, तो इसका जो ऑक्सिलरी बैटरी है जो बोनेट के अंदर रहता है वो यूज नहीं होता है. नहीं. ओके, ओके, प्लीज बताइए. हाँ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गाड़ी बंद में मतलब ये जो है ना, यहाँ पे आपको ये जो रेडी दिख रहा है ना, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे रेडी दिख रहा है. रेडी मतलब व्हेन यू, आप यहाँ पे अगर इसको ड्राइव मोड में डालोगे तो गाड़ी आपका चलना शुरू कर देगा. ओके, नाइस. ठीक है. तो ये आपका कुछ देर तक आपका मतलब लो स्पीड में ये आपका इलेक्ट्रिक से मतलब इलेक्ट्रिक मोटर इसको ड्राइव करेगा. और ये हाइब्रिड बैटरी उसका पावर देगा. ओके, वेरी नाइस. जब आपका आप एक्सेलरेशन करोगे इंजन को, मतलब कार को जब ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगा, एट दैट टाइम आपका इंजन चालू होगा. ओके, वो आपका व्हील्स को पावर करेगा. ओके, एज वेल एज हाइब्रिड बैटरी को भी चार्ज करेगा. ओह, वेरी नाइस. राइट, वेरी नाइस. और जितना बार
आप मतलब एक्सीलरेटर से पैर उठाओगे, द फ्रिक्शनल एनर्जी ऑफ द व्हील्स आर कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो फिर आपका बैटरी को चार्ज कर रहा है। ओके, तो ये आपका सेल्फ चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल है। वेरी नाइस। मतलब ये टेक्नोलॉजी जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, टोयोटा नंबर 1 है अभी इस चीज में। ये टोयोटा, ये आपका आप बोल सकते हो टोयोटा है, ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को टोयोटा ने ही मार्केट में लेके आए हैं सर। करेक्ट, दे आर पायनियर इन दिस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। इन दिस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसमें क्या रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है? एग्जैक्टली, जो मैंने आपको बोला ना, जो फ्रिक्शनल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज द रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ओके ओके ओके। सो जो इंजन ब्रेकिंग भी होता है जब, तो वो एनर्जी भी हाइब्रिड बैटरी पे ट्रांसफर होता है? देखिए, इंजन ब्रेकिंग का जो आपका मतलब आपका मतलब इंजन जो आपका चालू होता है, वो तब आपका हाइब्रिड बैटरी को चार्ज करेगा। ओके ओके ओके। इंजन बंद रहेगा तो इंजन चार्ज नहीं करेगा, आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग से ही चार्ज होगा। दो टाइप से चार्ज होता है, एक इंजन करता है, एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग। राइट, ओके ओके। तो चलिए, ये चीज मुझे भी नहीं पता था, आपने कितने अच्छे से समझाया इस चीज को। सो लेट्स कंटिन्यू अंडरस्टैंडिंग सर। तो ये ईसीवीटी गियर बॉक्स में आता है। एग्जैक्टली, तो ये 10 ईसीवीटी, स्पीड हाँ जी, सीक्वेंशियल ड्राइव आपका ईसीवीटी ट्रांसमिशन है। ओके ओके। तो 10 स्पीड सीक्वेंशियल ड्राइव, तो ईसीवीटी के बारे में आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं? देखिए, सीवीटी जो है, सीवीटी हम लोगों को पता है कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। करेक्ट करेक्ट। तो वो क्या होता है, वो एक बेल्ट के हिसाब से, वो आपका पुली और बेल्ट के हिसाब से वो मतलब चलता है, राइट। ईसीवीटी जो है, इसमें एक तो मोटर उसके साथ एडअप रहता है, ओके, ताकि इसका जो मतलब जब वो मतलब हाई गियर मतलब फर्स्ट गियर टू मतलब टॉप गियर तक जा रहा है, वो मतलब जो ट्रांसमिशन जो ट्रांसफर हो रहा है, तो उसमें आपका वो मोटर होने से क्या होता है, वो और फास्ट होता है, कोई लैगिंग नहीं रहता है, और फास्टर आपका एक्सेलरेशन हो जाता है। दैट इज व्हाई दिस इज ईसीवीटी। ओके, दैट इज अ वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। अब ये देखिए, आई थिंक ये एनर्जी फ्लो दिखा रहा है हमें। आपका बैटरी लेवल जो है, दैट जितना पावर रिक्वायरमेंट है उससे कम हो जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा, एंड दैट विल चार्ज द बैटरी। ओके ओके। तो इसके अपार्ट अब हमने समझ गया कि गाड़ी कैसे आपका फंक्शन करता है इन टर्म्स ऑफ बैटरी एंड इंजन। तो हम जानना चाहते हैं और इंफोटेनमेंट में क्या है। और इंफोटेनमेंट में अगर आपका आप देखोगे यहाँ पे आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, जैसे कि FM आपका मतलब ब्लूटूथ अगर आप कनेक्ट करते हो तो उससे आपका होता है। जब आप एंड्रॉइड हो तो एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर ले तो ऑटोमेटिकली वो आपका कनेक्टेड होता है आपका फोन के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे सेटिंग्स में हम दिखा सकते हैं अपने व्यूअर्स को कि हमारे पास यहाँ व्हीकल कस्टमाइज का ऑप्शन है, लाइट्स, इल्यूमिनेशन, डोर, तो ये सारे सेटिंग्स है हमारे पास। एग्जैक्टली। और ये सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो आप इंफोटेनमेंट का, ये सिक्योरिटी सेटिंग्स है, वॉइस एंड सर्च है, आपका बेसिकली वॉइस कमांड फंक्शन में बोल सकते हैं। साउंड एंड मीडिया है, डेटा एंड वाईफाई का भी डेटा एंड वाईफाई जो है, दीज आर ये डेटा एंड वाईफाई जो है, ये आपका गाड़ी जब सर्विसिंग में जाते हैं उस टाइम पे ये डेटा एंड वाईफाई काम में लगता है। ये कोई अलग से डेटा एंड वाईफाई कोई फोन के लिए या फिर लैपटॉप के लिए नहीं है। उस टाइम क्या काम में आता है? मतलब वो आपका उसका जो उन लोगों का जो मतलब ये है सिस्टम है, उसके साथ कनेक्ट के लिए उसका वाईफाई का ये वाला चीज है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए डेटा वाईफाई, सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए। ओके, ठीक है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, द डेटा एंड वाईफाई इज फॉर द सॉफ्टवेयर अपडेट ऑफ योर इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो अभी हम गेस्ट मोड में बेसिकली जो हमारा बायर होगा वो अपना प्रोफाइल सेट कर पाएगा। तो हमारा होम स्क्रीन भी यही है कि मतलब यही हमारे ऑप्शंस होम स्क्रीन यही है नेविगेशन, मतलब व्हेन यू स्टार्ट द कार ये नेविगेशन मोड पे ही आता है। ओके ओके। एंड अगर आप एंड्रॉइड हो तो एप्पल कारप्ले से कनेक्ट कर लेते तो वो उसका स्क्रीन ले लेता। इसमें कोई इनबिल्ट ऐप नहीं है? इनबिल्ट ऐप कुछ है नहीं। ओके। दिस कार आल्सो इज इक्विप्ड विद a 360-degree camera which Pallabda will be showing us as to how it functions and how the resolution is. We will see it right now. Please दिखाइए पल्लबदा। ये देखिए, सबसे बड़ा बात है, आप यहाँ पे आपका ये 360 डिग्री जो आपका पैनोरामिक व्यू है यहाँ पे आता है। हाँ जी, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से ये करते हैं ना, ये देखिए, ये पूरा आपका ये हो जाता है। सो ये हमें वार्निंग सिग्नल भी दे रहा है बेसिकली। ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, सो व्हाटएवर इज लाइंग अंडरनीथ द कार यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। So we have cameras under body as well. Under body as well. Okay, that's also a very nice feature. एक बार फिर से दिखाइए, थोड़ा रेजोल्यूशन हम देख ले कैमरा का। ये देखिए, So this is the bird's eye view. This is your reverse camera जो आपके ORVMs पे है, उसको भी हम जरा देख सकते हैं क्या इसमें? देखिए, ये इसमें आपका व्यू जो है ना, हाँ जी, व्यू यहाँ पे ऐसे ही एक ही व्यू आता है। अच्छा, तो आप जैसे आपका जो व्यू है, हाँ जी, व्यू अगर हम चेंज करें तो वो भी आपका सामने और इसका ही व्यू देगा सर। ओके वो ओके आपका मतलब सिर्फ साइड का व्यू नहीं देता है, क्योंकि अच्छा, इतना क्लियर आता है हाँ जी, व्यू, तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं।
पर चलते वक्त जैसे हम इंडिकेट करते हैं उसमें क्या साइड वो इंडिकेट वाला नहीं है। वो वाला इसमें नहीं आता है। ओके ठीक है, बट रेजोल्यूशन काफी अच्छा है गाइस एंड इट इज अ वेरी बिग स्क्रीन प्लस एवरीथिंग इज विजिबल। जस्ट लुक एट दैट, आपको सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, देयर इज नो इशू इन विजिबिलिटी व्हाटसोएवर। प्लस यू गेट योर गाइडलाइंस एज वेल एंड ये डायनामिक है कि ये फिक्स गाइडलाइन? डायनामिक। That's amazing. You turn the steering wheel and the guidelines are also turning accordingly, guys. So you get dynamic guidelines with this, which is, I think, a very convenient feature when you're parking the car and you can avoid to hit any object and keep your car good as new. तो ये एक फीचर पल्लव दा के साथ हमने एक्सप्लोर किया है। अब आगे और क्या है वो भी हम देखते हैं। अब हम सर सीट की बात करते हैं। आपके सीट्स बहुत कंफर्टेबल है एंड फर्म सेटिंग है। आई थिंक फर्म सेटिंग बेस्ट होता है क्योंकि लॉन्ग जर्नीज में आप जल्दी थकते नहीं हो। तो मेरे को फर्म सेटिंग भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो आपके सीट में क्या फीचर है, कितना वे, इट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ऑफ कोर्स। अब हम कितने वेज में उसको एडजस्ट कर सकते हैं, वेंटिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, प्लीज इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये देखिए, पहले आता है यहाँ पे वेंटिलेशन का। हाँ जी, ये है ड्राइवर सीट का। Okay. ये वेंटिलेशन है ड्राइवर सीट का। ओके राइट। ओके ये है आपका को ड्राइवर सीट का। ओके यहाँ पे जो एसी आता हाँ है, जी। दिस इज अ 3 जोन एसी। यहाँ पे 3 zone आपका climate control। ड्राइवर का है, को ड्राइवर का है और रियर पैसेंजर्स का भी। Rear passengers वेरी का नाइस, वेरी नाइस। विद दैट यहाँ पे आपका नैनो ही एक्स टेक्नोलॉजी आता है, जिसमें आपका इनसाइड का जो एयर है हाँ जी। वो एयर में आपका वायरस एंड बैक्टीरिया जो है वो उसको प्यूरिफाई करके इनसाइड केबिन में डालते हैं ताकि यू Okay. कैन ब्रीथ अ फ्रेश एयर इनसाइड द केबिन। So it is called Nano EX. नैनो EX टेक्नोलॉजी। Very nice. Okay, so ये guys, you are getting a Nano EX air purification technology with the Camry as well. So the air that you breathe inside is going to be absolutely pure air. Am I right? Palak? Exactly. Okay, so that is of course another premium feature, guys. And seats की adjustment की बात करें अगर हम पल्लव दा, कि ये कितना भी adjustable है ड्राइवर सीट? बोथ ड्राइवर एंड को ड्राइवर इज एडजस्टेबल इन 10 ways। 10 ways adjustable. It comes with memory function, right? एग्जैक्टली मैं इसमें आ रहा था। Okay, okay. ये आपका G3 में कोई भी वेरिएंट में हमको मिलेगा नहीं। यहाँ पे आपका मेमोरी फंक्शन में यू आर हैविंग योर सीट, यू आर हैविंग योर स्टीयरिंग Yes. एज वेल एज यू आर हैविंग योर ओआरवीएम कंट्रोल्स। ये Wow. तीनों आपका मेमोरी फंक्शंस में आता है। मान लीजिए व्हेन यू आप ड्राइव कर रहे हो तो आप अपना हिसाब से सीट को आपने एडजस्ट किया, Right. स्टीयरिंग को आपने टेलीस्कोपिक आपने एडजस्ट किया, Right. और ओआरवीएम्स को भी एडजस्ट किया अपना हिसाब से। Okay. उसको मेमोरी 1 में आपने डाल दिया। Right. मैं फिर अपना अपने जैसा बैठा, मैं अपने आपके अपना जैसा मैंने उसको फिर से मैंने एडजस्ट किया। व्हेन यू अगेन कम डाउन टू द कार, यू जस्ट प्रेस 1 एंड द सीट एंड एवरी ओआरवीएम एंड स्टीयरिंग विल बी एडजस्टेड एज पर योर पोजीशन यू पुट इट ओवर देयर। Wonderful. This is ये आपको कोई भी G3 में नहीं मिलेगा। वंडरफुल। आई मीन ये आपने अभी दिखाया कि ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग है। थोड़ा आप मुझे दिखा सकते हैं वो बटन? यहाँ पे आपका स्विच है, राइट। ठीक। ये आपका ये करने से रीच के लिए हो गया। हाँ। और ये आपका tilt अच्छा, ये टिल्ट के लिए हो गया। वाओ, सो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग यू आर गेटिंग विद दिस गाइस। और ये इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी में अभी कोई भी तक गाड़ी नहीं में, है। कोई G3 गाड़ी में आपको कोई मिलेगा नहीं। G3 गाड़ी में इसका नहीं है। competitors जो भी गाड़ी है उसमें आपको ये वाला फीचर्स आपको मिलेगा नहीं। ओके, नाइस। सो अभी तो आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है देखा जाए तो। अभी इस सेगमेंट में आपका कैमरी ही इज गोइंग टू रूल फॉर नाउ। हमारे अभी बात हो रही है स्कोडा सुपर्ब की आने की, और अकॉर्ड तो मुझे नहीं लगता आएगा। सो वील सी, तब हम कंपैरिजन वीडियो बना पाएंगे, तब हम बनाएंगे। बट अभी तो कैमरी का कोई कंपटीशन नहीं है। और पावर फिगर्स में तो लाइक अभी जो स्कोडा सुपर्ब भी आ रही है उससे भी ज्यादा पावर तो आपको कैमरी में है। उससे भी ज्यादा पावर कैमरी में है। सो अगर कोई इंथुजियास्टिक बायर भी होगा मेरी तरह जैसे, वो आई थिंक पावर पर्सपेक्टिव से अगर जा रहा है तो कैमरी वुड डू अ वेरी गुड जॉब। आई मीन देखिए, स्टीयरिंग भी अगर हम फील कर रहे हैं काफी लाइट है, गाड़ी बहुत बड़ी है आपकी, ऑलमोस्ट 5 meters लॉन्ग। Yes. So it's a smart system. It's a It smart detects अभी हम रुके हैं and the car will run on the hybrid battery, and the moment I need to move the car तो will वो आपका पहले आपका इलेक्ट्रिक नहीं चलेगा। Correct. So when you accelerate, when you need Need more power. power, then आपका engine start। You get paddle shifters with this also, with the eCVT gearbox। अगर आपको मैनुअल कंट्रोल चाहिए तो आपके पास पैडल शिफ्टर्स भी है, एंड आप enthusiastically भी इसको चला सकते हो। एंड ऑफ कोर्स यू गेट योर स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स हियर, यू गेट योर लेन कीप असिस्ट, Yes. you get your cruise control, and you can set your cruise control speed here, and you get your voice command। यहाँ पे modes है आपके, और ये आपका return जाने के लिए, ये call के लिए, and to track change, and of course volume increase and decrease, everything basic functions are provided। Toyota logo is in the middle, and a very nice leather wrap steering wheel, very nice feel overall, very premium। And let me know your thoughts, what do you guys think about this whole layout guys? आपको कैसा लगा? Do let me know।
This is the horn, very powerful horn as well, because ये horn ना आजकल it is loved, especially by me. I think सारे जो कार बायर्स हैं उनको ये हॉर्न सबसे ज्यादा पसंद है. अगर उनको स्टॉक में नहीं मिलता है तो बाहर से लगा लेते हैं. सो दिस इज कमिंग एज स्टॉक गाइस, एंड प्लस नाउ वी हैव द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर व्हिच इज आल्सो ऑल डिजिटल. थोड़ा इसके बारे में बताइए मेरे को. इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ. हाँ जी. ये जो कार है ना, दिस कार इज कमिंग विद TSS 3.0. Okay, that is Toyota Safety Sense, right? 3.3 version 3, right. इसमें आपका क्या आता है? इसमें आपका 5 फीचर्स आते हैं. हाँ जी. One is lane trace assist, okay, lane departure alert, okay, pre-collision assist, right, dynamic radar cruise control, okay, auto high beam. Okay, प्लीज ये 5 फंक्शंस के बारे में थोड़ा बताइए. 5 फंक्शंस के बारे में जब हम बताने जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए. अभी हम लोग MID में आते हैं. हाँ जी. ठीक है. अब देखिए सर, यहाँ पे क्या होता है, आप जब गाड़ी चला रहे हो, बाय डिफॉल्ट द लेन ट्रेस असिस्ट इज ऑन. ओके, राइट. तो इसलिए देखिए यहाँ पे आपका ये सिग्नल्स दिया हुआ है. ये ओके, ओके, ठीक है. तो वो आपका ग्रीन हो जाता है जब मतलब हम लोग एक लेन में चलते हैं. व्हेनेवर क्या होता है, हम लोग कभी कभी लेन के बाहर जब जाते हैं तो दे प्रोवाइड्स एन वार्निंग. दे ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग थोड़ा घूम जाता है, घूम के उसको फिर से लेन में लेके आ जाता है. करेक्ट, करेक्ट. ठीक है. ये हो गया आपका लेन ट्रेस असिस्ट. जब हम लोग मान लीजिए लेन डिपर्च मतलब एक लेन से दूसरे लेन में जा रहे हैं, तो वो हम लोग तो डिपर्च कर रहे हैं वो वाला लेन से, तो हम लोग जब डिपर्चर कर रहे हैं तब उस टाइम पे वो फिर से एक सिग्नल देगा. ओके, ठीक है. वो हम लोगों को यहाँ पे सिग्नल देगा कि यू आर लिविंग द लेन. तो ये आपको वहां पे दिखाई देगा. ओके. तो दैट इज लेन डिपर्चर असिस्ट. ओके, राइट. सामने में मान लीजिए कोई there is a vehicle and you are a trailing vehicle behind it. तो वहां पे क्या होता है, वो ब्रेक कर दिया तो हम लोगों का कोलिशन का एक मतलब ये है, वो कोलिशन वार्निंग है. तो वहां पे इमीडिएटली आपको वो वार्निंग दे देगा कोलिशन का. वो एक तो ब्रेक भी लगा देगा गाड़ी में. तो वो क्या होता है, वो गाड़ी स्लो हो जाएगा. लेकिन जो भी है ना सर, ये पूरा आपका ड्राइवर नहीं रहने से काम नहीं करता है. एब्सोल्युटली. ड्राइवर को भी काम करना पड़ेगा. रोबोट्स तो है यहाँ पे काम करने के लिए, लेकिन ड्राइवर्स को भी यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा. करेक्ट, करेक्ट. नहीं तो हो सकता है कोलिशन हो सकता है. ओके. तो इसमें से अब्रप्टली जैसे एडास की तरह ब्रेक नहीं लगता है, इसमें एक आपको ये कर देगा, गाड़ी आपका स्लो हो जाएगा. लेकिन क्या होता है ना, हम लोग अभी तक वो टेस्ट करके देखे नहीं है कि वो आपका पूरा एकदम स्टॉप हो जाता है कि नहीं, बिकॉज इट्स टू रिस्की. ओके. तो यहाँ पे क्या होता है, तो गाड़ी स्लो हो जाता है, देन यू पुट ऑन द ब्रेक. तो इसमें आपका क्या होता है ना, ये लेकिन ये आपका एडस की तरह वो आपका मतलब साइक्लिस्ट और पेडेस्ट्रियन ये आपका डिटेक्ट नहीं करता. आई थिंक एडास का इंडिया में तो अभी कोई जरूरत है नहीं, कितना जरूरत नहीं, बिकॉज फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस अभी जो हमारे कंडीशंस है रोड के, उस हिसाब से एडास I believe will not do a very good job. ADAS ऑफ करके गाड़ी चलाना ठीक रहेगा, because वो अचानक से ब्रेक मार देगा. Exactly. क्योंकि electronics can sometimes detect something that is not there. और कुछ नहीं होगा, वो गलत चीज डिटेक्ट कर सकती है. तो उस हिसाब से जो फंक्शंस अभी इसमें है, मेरे को लगता है बहुत बेसिक फीचर्स है सेफ्टी के, which is a good thing. एंड क्या होता है ना, टोयोटा कभी आपको ज्यादा फीचर्स आपको देगा नहीं, लेकिन जो भी देगा दैट विल बी वेरी यूजफुल टू यू. करेक्ट, करेक्ट. तो ये आपका इसलिए टोयोटा का ये सिक्योरिटी सेंस है जिसमें आपका ये फीचर्स दिया जाता है. राइट. उसके साथ डायनामिक रेडर क्रूज कंट्रोल है. आपका जो सामने का जो व्हीकल है, योर ट्रेलिंग व्हीकल विल बी एट द सेम स्पीड. वो अगर ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके खड़ा हो जाता है, ये भी ब्रेक करके खड़ा हो जाएगा. देन अगेन इट स्टार्ट्स मूविंग and it will start move. Okay. तो ये आपका डायनामिक रेडर क्रूज कंट्रोल है. ऑटो हाई बीम जो है, इफ मतलब लीजिए हम लोग जब हाईवेज वगैरह में चलाते हैं तो क्या होता है, ऑपोजिट से जब हम लोगों का मतलब व्हीकल आ रहे हैं, तो वो उस मोमेंट पे अगर दैट इज इन अ लो बीम, तो मेरा व्हीकल भी ऑटोमेटिकली लो बीम में हो जाएगा. वो क्रॉस कर जाएगा तो ये हाई बीम में चलेगा. वेरी प्रैक्टिकल फीचर, बिकॉज इंडिया में हाई बीम की बहुत प्रॉब्लम है, तो यूजुअली हाई बीम में इंडिया में बहुत लोग चलते हैं. एग्जैक्टली. सो दैट इज अ वेरी नाइस फीचर. तो ये वाला जो चीजें है, यू विल गेट ऑल द थिंग्स ओवर हियर. अगेन ये जो नेविगेशन है, नेविगेशन के क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ताकि यू डोंट हैव टू मूव योर हेड एंड सी द नेविगेशन ओवर हियर. वहीं पे आप देख सकते हो, यू हैव टू गो राइट, लेफ्ट, व्हाटएवर. यहाँ पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन आ जाता है. सो दिस इज गुड फॉर द ड्राइवर बेसिकली, क्योंकि उसका अटेंशन चेंज नहीं होगा. एग्जैक्टली. तो थोड़ा आप MID दिखा सकते हैं, मतलब क्या क्या ऑप्शंस है इसमें? देखिए सर, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ये गाड़ी चलेगा तो आपको पूरा चीज दिखा. कोई बात नहीं, जो स्टैंड स्टिल में आप वही दिखा. ये देखिए सर, ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का मोड है. हाँ जी. ठीक है. हाँ जी. इसमें आपका जब मतलब चलेगा तब आपको जो है सामने का गाड़ी का जो स्पीड है वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा. वंडरफुल. राइट. अच्छा.
यहाँ पे TPMS सबका है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग Okay. सिस्टम सबका है, Okay. ठीक है। अच्छा, इसके साथ आपका यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ये आपका क्रूज कंट्रोल है, Cruise ठीक है। control. व्हेन यू पुट ऑन द क्रूज कंट्रोल, Right. यहाँ पे आप क्रूज कंट्रोल ऑन करने से शिफ्ट टू दी, हमको डी में इसको शिफ्ट करके फिर क्रूज कंट्रोल को ऑन करना है, वो अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। लेन, ये है आपका लेन ट्रेस असिस्ट को, आप अगर इसको मतलब ऑफ करना चाहते हो तो वहां से आप ऑफ कर सकते ऑफ भी कर सकते हैं, वेरी हो, ठीक है। अच्छा, उसके साथ यहाँ पे जब गाड़ी चलेगा सर, तब इसमें इंफॉर्मेशन आएगा, तो मैं आपको उस टाइम पे मैं आपको पूरा चीज दिखा पाऊँ। डेफिनेटली एक दिन हम लोग प्लान कर सकते हैं, जब एक टेस्ट ड्राइव हमें लेना हो, वीडियो बनाना हो, तो मैं आप ही के साथ जाऊंगा पल्लव दा, एकदम। और आप एक एक चीज फिर से हमारे व्यूअर्स को जरूर समझाइएगा। तो ये एक चीज हो गया गाइस, आई मीन वेरी प्रीमियम फील ओवरऑल। अंदर में तो हमें बड़ा मजा आया बैठ के। आपके पास AC functions I can just share with you. You do get a front and rear defogger. This is to switch off your AC, and this is your AC vent design. Soft touch मिल जाता है आपको डैश में यहाँ पे, which is very premium leather I feel. This is you get a storage here. Here you get your wireless charging pad. This is your ECVT gear knob. And you can see the PRND and sport mode function is also available. Eco, normal, sport, all three modes are there. Plus EV मोड भी है इसमें गाइस। ये क्या फंक्शन है पल्लव दा? ये है आपका होल्ड फंक्शन। होल्ड फंक्शन। होल्ड फंक्शन क्या करता है, मान लीजिए यू वर ड्राइविंग द कार, आप एक सिग्नल में रेड लाइट में आप रुक गए, तो नॉर्मली में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्राइव मोड से इसको पार्किंग मोड में डाल देते हैं टू रिलीज अवर लेग, टू गेट अ कंफर्टेबल थिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होल्ड अगर आप ऑन कर देते हो तो क्या है, आपका ड्राइव मोड में रहने से अगर आप ब्रेक से भी पैर हटा लोगे, योर कार विल नॉट मूव। यूजुअली क्या होता है ऑटोमेटिक कार्स में, अगर आप ड्राइव मोड में रखो तो आपको ब्रेक पे पैर रखना ही पड़ता है, रखना ही पड़ेगा। दैट बिकम्स वेरी अनकंफर्टेबल। नहीं तो फिर आपको पार्क में करना पड़ेगा या फिर न्यूट्रल में डालना पड़ेगा। तो ये होल्ड में डाल देने से, आपका डीप मोड में रहने से भी आपको ब्रेक मतलब रिलीज करने से भी आपका गाड़ी नहीं मूव। तो हम होल्ड दबा देंगे until you accelerate. Oh, so as soon as I accelerate, this will go off. No, this will not go off. This will go to pause. Okay. अभी नेक्स्ट सिग्नल में फिर से आप रुक गए, फिर से आप ब्रेक करके रुक गए, अच्छा। तो फिर से आप पैर हटा लो, आपको फिर से ये दबाना नहीं चाहिए, अच्छा। एक बार ही दबाना है, Okay. until you stop your engine. So this will activate, अगर मैंने एक ही बार दबा दिया गाड़ी स्टार्ट करते ही, तो अब मुझे इसको छेड़ना नहीं है, और छेड़ना ही नहीं है, अब ये अपने आप आप कंफर्टेबली सिर्फ चलाओ। That is an other amazing, that's a convenient feature मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं बार मुझे D और P में शिफ्ट नहीं करना होगा। So again guys, premium convenience at your fingertips. So this whole function is actually a very useful feature for sure if you are driving an automatic vehicle. अगर ये feature के साथ आप लेते हो तो ये बहुत ही convenient है guys. And we do get electronic parking brake here. And ये armrest के बारे में थोड़ा बात करते हैं. This is a storage box. Nice storage. I mean, look at that, massive. Put your wallet or whatever you like. I think I can put a lot of things here. Yeah, you can put a lot of things. It is massive. हम थोड़ा अगर glove box की भी बात करें तो this is a very big storage as well. क्या ये cooled glove box है? No, it's not cooled. It's not cooled. Okay, that's fine. Cool glove box की हमें जरूरत भी ऐसे होती नहीं है. But आप first aid kit दे सकते हो, and you get LED lamps with your glove box as well. You get 3 USB-C charging sockets here as well, guys. Which I mean, it's a massive center console. And a lot of things are here to discover. आप ना जब गाड़ी लोगे ना आप discover ही करते रहोगे और क्या क्या नया है इसमें. So I believe the Camry has definitely, always it does, and it has knocked it out of the park yet again, guys. You get your auto dimming IRVM, you get LED lights here. So this is a moonroof as explained by Pallabda, and this is controlled from this open button, and this is the close button right here. ये one touch close नहीं है. Oh wow, very nice. बस ये ट्रे हमें एंटी पिंच भी है, तो चलिए हम एक बार एंटी पिंच फीचर भी टेस्ट कर ही ले। तो चलिए पल्लव दा, अब आप दबाइए क्लोज। बहुत बड़ा डिस्प्ले रहा हो, खुल गया। सो दैट वर्क्स गाइस, एंटी पिंच वर्क्स हियर फॉर श्योर। बट ये ट्रे जो है मैन्युअली आप वो क्लोज कर सकते हो, तो दैट्स फाइन गाइस। हर चीज इलेक्ट्रॉनिक, मैं खुद ही बोलता हूँ हर चीज को इलेक्ट्रॉनिक नहीं होना चाहिए, बिकॉज देन द कार बिकम्स अनरिलायबल। सो दैट इज वन थिंग, इट इज अ मिक्स, इट इज अ मैच. You do get electronics, yet you do get a lot of manual control as well, which I believe is the perfect balance. क्या बोलते हो आप पल्लव दा? एकदम। मैंने आपको बोला ना, ये जो मतलब इसका कंपटीटर्स जो है, हाँ जी, अभी ये कैमरी, दिस इज द best one. We are about to enter this amazing space of the Camry, which is the rear, because अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो, this is the place to be in for sure, because definitely it's a chauffeur driven car. Here you get soft touch, you get grab handle storage, your window one touch up and down, and your
Door storage is also provided. Some stitching here. This is soft touch. This is hard plastic. This is your door opening knob with rear sunshade, guys. Let us get inside. आइए पल्लव दा, अब हम इसको explore करते हैं. So guys, you can see I have got ample amount of knee room, acres of space. This is my driving position, and foot room is also next level. Let me show you the headroom before I get to Pallav Da. Look at this, guys. Even though the roof is sloping, I'm sitting relaxed and I still have more than an inch of headroom for sure. And of course, given the Camry suspension, even if it goes through bad patches of road, you will hardly feel anything inside. That is for sure. We will do a drive review on that with Pallav Da soon. So I will bring you, the complete test for sure. But I'm sure that Camry is not going to disappoint. So Pallav Da, हमारे पास इतना रूम है, लेग रूम, मैं खुद 6 फुट का हूँ, तो इसका व्हील बेस क्या है, थोड़ा मेरे को बताइए। ये आता है आपका 2825 मिलीमीटर का आपका व्हील बेस है। दैट इज एक्चुअली प्रीटी गुड, हाँ। प्लस बेस्ट इन सेगमेंट, बिकॉज सेगमेंट में तो भाई इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, एंड लॉन्गेस्ट कार इन द सेगमेंट आल्सो। सो व्हील बेस तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। आई मीन लुक एट द स्पेस दैट आई हैव गाइस, यू आल्सो गेट सीट पॉकेट्स ऑन बोथ द सीट व्हिच इज प्रैक्टिकल, एंड आपको इलेक्ट्रिक बॉस मोड भी मिलता है। Exactly. करेक्ट पल्लव दा, एकदम। तो आप किसी को छेड़ना चाहो जो आगे बैठा है, हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। एकदम। आई कैन सी दिस आर्म रेस्ट, यहाँ पे मुझे ना लगता है टच फंक्शन दिख रहा है एकदम। इसके बारे में बताइए मेरे को। ये भी जो चीज है ना, हाँ जी, ये जो यहाँ पे जो फंक्शंस दिया गया है, हाँ जी, you will not get these functions in the competitive cars ओके, with the price range of कैमरी, Camry. राइट, ये देखिए सीधा touch वाओ, यहाँ से यहाँ पे क्या होता है, ये जो सीट्स है, you can recline your seats यहाँ से। from this way I can feel it going back and forward. Yes. Whoa. अच्छा, दोनों सीट आप रिक्लाइन कर सकते हो। यहाँ से आप जो एसी है, एसी का टेम्परेचर वगैरह सब कुछ बढ़ा सकते हो, सब कुछ यहाँ पे आप उसको ये भी कर सकते हो। तो ये जो एसी वेंट है, हम्म। हम इसको यहाँ से कंट्रोल यहाँ कर से सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हो। ओके, उसके साथ आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, यू कैन चेंज योर ट्रैक्स, यू कैन चेंज द वॉल्यूम, you can change the field, means you can change it from Bluetooth to FM and whatever you like. सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो बैठ के। ओके, सो इसका एक मतलब पावर सेविंग मोड में है, जैसे आप थोड़ा देर छोड़ दो तो अपने आप चला जाता है। Exactly. बट ये रियर सीट हमारी वेंटिलेटेड नहीं है ना? नहीं, रियर सीट यहाँ पे वेंटिलेटेड नहीं आता है। ओके, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे एक तो रियर सनसेट आता है, व्हिच इज ऑटोमेटिक। यस, वाओ, ऑटोमेटिक। ठीक है, इसको ये देखिए यहाँ पे आपका स्विच जो है, ये सनसेट यहाँ से आपका ऑटोमेटिकली लूज हो जाए। तो ये बेसिकली मर्सिडीज वाली फील दे रहा है आपको, विदाउट ब्रेकिंग योर पॉकेट। यू गेट 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट गाइस विद दिस। यू आर आल्सो हैविंग अ कप होल्डर ओवर हियर। ओह, दिस इज नेक्स्ट लेवल। ये फिर से कर पे, ये इसको बंद किया, वाह यार, ये तो दिस इज गाइस, आई मीन द अमाउंट ऑफ प्रीमियमनेस यू आर गेटिंग विद दिस कार। आई मीन इफ यू आर सिटिंग एट द बैक and if you are only chauffeur driven, you are going to love it for sure, even though it is an enthusiastic car, but chauffeur driven people are also going to love this car. क्या ये armrest भी हमारा खुलता है? It doesn't open. अगर बंद हो जाता है तो 3 people can sit comfortably. Very comfortably, and actually it's very wide and it's very spacious. 3 people will be able to sit very comfortably, no doubt about that. You get LED lights guys for your rear cabin. आपको grab handle मिलता है with hook on both sides, which is nice. आपको grab handle ड्राइवर के लिए भी मिलता है, which is very rare Exactly. in sedans. But ये है स्टोरी guys Camry की, from the front and the rear, and these are the features that you get, which I feel is complete value for money guys. I mean, on road I think close to 57 lakhs, 48 lakhs ex showroom। आपको कोई भी गाड़ी इस प्राइस रेंज में इतना सारा चीज के साथ, और हमारे कैलकाटा ऑन रोड में कितना आ जाएगा? कोई कैलकाटा में 54 lakhs ऑन रोड आ जाता है with your 3+3 insurance and everything, with all the top VAS, everything included, just 50, and it's 54 lakhs. 54 lakhs. I mean guys, if you have a budget of 54 lakhs and if you are looking for reliable luxury, I think Toyota Camry is the car for you, and Seni Toyota is the place where you need to buy the car from. Please do reach out to Pallav Da. मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो if you are planning on buying a Toyota Camry guys, the new one, of course, we you know where to reach out to, whom to reach out to, and अगर आप कलकत्ता से हो तो of course Seni Toyota ही आना यार, and drive away with your dream Camry car. Thank you Pallav Da for joining me in this video,
Thank you so much for Thank having. We are pleased that we have you over here. Thank you so much, sir. I really appreciate that honor. And of course, I look forward to covering more Toyota cars in the future. क्योंकि Toyota गाड़ी यार उसका कोई अभी तोड़ नहीं है in terms of reliability. And पल्लव दा के साथ फिर मुलाकात होगी when we test drive the Camry for sure. Thank you once again, We'll पल्लव go दा. out for a long test drive. Done, sir, done. तब आपको मिलेगा इसका feel. तब वो तो ऑफ कोर्स सर, ये गाड़ी अगर हम लॉन्ग में नहीं जाएंगे तो हमें कैसे मजा आएगा, बिकॉज आवर व्यूअर्स डिजर्व द बेस्ट इन क्लास रिव्यू व्हेन इट कम्स टू टेस्ट ड्राइविंग अ कार लाइक कैमरी. तो ठीक है सर, हम आपको फिर मिलेंगे टेस्ट ड्राइव में. एंड थैंक यू मिस्टर अबीर गुप्ता एंड प्रदीप दा फॉर द इनवाइट फॉर द लॉन्च ऑफ द कैमरी in Seni Toyota. I'll see you on the next one. Take care, stay safe and drive safe, Turbo Rebels. Bye bye.